Ma'am. So everyone first mark your attendance. My screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. from today, I will raise the question for the attendance in between 12 to 12:15 up to this. Okay. Those who are joining the late, I will not wait for them. Okay. Okay. If they join the late, then their late attendance will mark in the submission. Okay. So here, so which point we discussed in the last lecture? Types of decision-making environment. Decision making environment. We discussed the decision making environment. Which are the environments? How many environment? 3. Three environment. Yes, Priti. Which one is the first? Tell me the name of the first environment. Jayashri. Ma'am, Yes, Kshitija. decision under certainty. Decision under certainty. Okay, this is the first environment. Second one, Decision making under risk. under risk. And Uh, third one is, Uncertainty. and third one is the decision under uncertainty. We discussed these Uncertainty. three environment in last lecture. Yes. Okay. So what happened in the certainty? Yes. डिसीजन जो होता है ना, Hmm. Best of the best selection, ma'am. हाँ, Best of the best selection. Why we are able to choose the best of the best solution? Because we know the outcome of each and every alternatives. We know the detailed knowledge about the alternatives. Okay. हमको detailed knowledge होता है of every situation. And because of that, we are able to select best of best solution for our problem. Clear? Uncertainty yes. में, in uncertainty, मतलब उसमें yes, because of lack of knowledge, we don't have any knowledge about the, yes, Kshitija, About the मतलब मैं अल्टरनेटिव, और जो भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास है उसके बारे में हमारे पास उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं नहीं होती है. Okay, so because of that, there is an uncertainty without any probability. We don't know the any probability of the situation. Okay, so this is the condition under uncertainty. और risk में क्या होता है? In risk, that is we are considering the expected probability. That may or may not be probability हम consider करते हैं. Expected probability हम expect करते हैं that we may have the 50% profit or 50% loss. Okay, based on that, that is we are keeping all the things on equal level and we are considering the expected probability, and based on that we are choosing the alternatives. Okay.
All of you are not doing the study. Okay. So this point we are discussed in the last lecture. Again, we discussed the different steps of theory. Now, we already discussed these zones of decision making. I already explained this diagram in the last lecture, that is increasing knowledge towards the certainty and decreasing knowledge towards the uncertainty. In between the certainty and uncertainty, there is a risk. That means in risk, we are considering the expected value of the probability, and based on that we are selecting the alternative. Okay, we are already discussed this. Any difficulty in this point to anyone? No, Yes. ma'am. Okay, so we already discussed about the certainty को भी डिटेल में हमने देखा था. Now today we are discussing here the uncertainty. In uncertainty there are the several outcomes for each decision. Now the probability of each outcome is unknown. We don't know the any probability of outcome. Okay, अभी हम आगे देखेंगे कि probability क्या होती है. Probability देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी आर हैविंग हैबिट टू यूज द परसेंटेज 100%, जिसको हम बोलते हैं कि 100% तुमको प्रॉफिट मिलेगा, 50% प्रॉफिट मिलेगा, ये हम बोलते हैं ना. तो हमेशा आपको याद रखना है, ये जो प्रोबेबिलिटी हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वर्क इन बिटवीन 1 and 0. ओके, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू लेते हैं ना हम, so that value we always consider in between 1 and 0. Here 1 means the 100%. 1 का मतलब क्या होता है 100%, और 0 का मतलब होता है 0%. तो प्रोबेबिलिटी कौन से दो वैल्यू के बीच में ऑपरेट होती है, दैट इज इन बिटवीन द 1 and 0. If I consider the value 0.4, that means how many percent? Anybody? 0.4 means 0%. 40%. yes, obviously it is a 40%. 40% is the right answer. It operates, just I told that it operates in between the 1 and 0. 1 means the 100% and 0 means the 0%. So if I consider 0.1 means the 10%, 0.2 means 20, 0.3 means 30, 0.7 means 70%. Okay, so this is the probability. अब probability क्या होता है देखो, when I toss the coin. Okay, toss the coin, अगर हम एक coin को toss करते हैं, so what is its outcome? We don't know. हम उसके बारे में sure है कि क्या आएगा, whether it is head or whether it is tail, we are not sure. Okay, तो जो situation में हम sure नहीं होते हैं, उस वक्त हम probability का use करते हैं. अगर हम sure है मतलब deterministic. Okay, if we are sure then it is a deterministic. If we are not sure, that is undeterministic, but we are having some probability. So at that time we are using the concept of, मतलब probable decision होता है, may or may not be वाला जब decision होता है, yes or no वाला decision नहीं, may or may not be वाला decision है, at that time we are considering the probability. Okay, so if I toss the coin, so at that time you know whether it is head or tail. आपको पता होगा क्या क्या आएगा, head आएगा या tail आएगा? No. At that time we are considering the probability 0.5%, means 50% probability it may tail, 50% probability it may head. 50% क्यों लेते हैं हम, क्योंकि एक इवेंट के दो आउटकम है. अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ, वो एक इवेंट है और उसके दो आउटकम है. दो आउटकम कौन से है, एक तो हेड है और एक तो टेल है. तो हम प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड करते हैं, इवेंट डिवाइडेड बाय आउटकम्स. इवेंट क्या है हमारा, वन इवेंट, दैट इज टॉस द कॉइन, और उसके आउटकम्स कितने हैं, दो आउटकम, हेड और टेल, इसलिए 1/2. 1/2 इज 0.5, which is nothing but the 50% probability. Clear to everyone? Probability concept समझ में आया सभी को, क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हम probability का यूज करने वाले हैं. ओके, सो here the if in uncertainty, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हमको पता नहीं है. अब जैसा मुझे
मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे उसके इवेंट पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ओके। और दोनों के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% है। तो हम उसको अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं, आई नो द प्रोबेबिलिटी इट में हेड और इट में टेल, ओके। बट इन अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट we don't know the outcome of each probability of each outcome is unknown. We don't know कि मैंने अगर इसमें ये डिसीजन लिया तो क्या होगा, या फिर मैंने कोई और अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया तो क्या होगा, ओके। सो वी डोंट नो द आउटकम ऑफ each of the probability, each of the alternatives probability, okay। मतलब यहाँ पे the several outcome of each decision, there are the number of alternatives are there, several outcome, number of outcomes हो सकते हैं एक डिसीजन के, बट हर डिसीजन के आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी है वो मुझे पता नहीं है। नॉलेज वुड लीड टू लेस अनसर्टेनिटी। हमने देखा कि अनसर्टेनिटी के तरफ हमारा लेस नॉलेज होता है, हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज हियर when you are in the 12th standard and you want to take the admission in different courses, आपको एडमिशन लेना है, you are totally blank, you don't know anything about the any courses, आपको कुछ पता नहीं है कि बीएससी ऑप्शनल में क्या होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में क्या है, आईटी में क्या है, उसके बाद फार्मेसी में क्या है, यू डोंट नो एनीथिंग, ओके। तो वहां पे क्या होता है, यू हैव द अनसर्टेनिटी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है, दैट मीन्स रिस्क, थोड़ा नॉलेज है मतलब रिस्क, दैट इज हर कोर्सेज को आप इक्वल लेवल पे रख के जिसके बारे में आपको एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी मतलब थोड़ा नॉलेज है, तो ऐसे कोर्स को आप एडमिशन लेते। या फिर सर्टेनिटी कब रहेगी, आपका फिक्स है कि मुझे इस कोर्स को जाना है, यू हैव द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कोर्स, ओके। अगर आपको उस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन है और फिर आप वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हो, दैट इज सर्टेनिटी। आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में, नंबर ऑफ कोर्सेज है, नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर आफ्टर 12th, ओके, एंड एनीबडी डोंट नो अबाउट एनी ऑफ द कोर्स, ओके। तो उस केस में आप एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हो, यू डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, ओके। वो सिचुएशन किसकी आएंगी, अनसर्टेनिटी की। और रिस्क में क्या होगा, यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, किसी कोर्स के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, समटाइम वी आर टेकिंग द एडमिशन बेस्ड ऑन अवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड ने लिया है, उसी एक चीज के बेसिस पे, उसी एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप क्या करते हो, वो कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो, दैट इज द रिस्क। अभी समझ में आया आपको तीनों एनवायरमेंट? क्लियर टू एवरीवन? सर्टेनिटी, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. ओके। Yes, ma'am. सो हियर अभी एक कोर्स के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन है, आप उसको एडमिशन ले रहे हो। सर्टेनिटी, एक कोर्स के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यू डोंट नो द आउटकम, ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या जॉब मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड द थर्ड वन, दैट इज you are taking the admission based on, that is your friend taking the admission for that, so on the basis of that you are also taking the admission, that is the risk case। आपको समझ में आया तीनों भी? ओके। हाँ, मैम। सर्टेनिटी में आपको पता है कि आउटकम क्या होगा, अनसर्टेनिटी में आउटकम के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, और रिस्क में आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो, ओके। तो this is decision under uncertainty is very difficult, then managers attempt to avoid the uncertainty, okay। तो so this is about the uncertainty के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे कि डिसीजन एनालिसिस हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बोला था कि अब अगर हमारे पास, now we discuss the different decision criteria, at that time we discuss if we have the limited goal or the limited alternatives, for that we are using the technique of decision table। if you remember that table याद है आपको, हमने जिसमें डिसीजन कैटेगरीज, डिफरेंट डिसीजन कैटेगरीज को डिस्कस किया था। Yes, ma'am.
हाँ, तो सबसे पहला जो जो कैटेगरी था दैट इज ऑप्टिमल अल्टरनेटिव्स, फ्यू अल्टरनेटिव्स। हमने फ्यू अल्टरनेटिव्स को देखा था, तो यहाँ हम देखेंगे डिसीजन एनालिसिस विथ अ फ्यू अल्टरनेटिव्स दैट इज सिंगल गोल सिचुएशन। ओके, तो हमने देखा था कि उसके लिए हम डिसीजन टेबल या डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर द single goal situation in which we are discussing here the decision table. तो decision table क्या है? Now decision table, whatever the information we have, that information organization, that is it organize the information and the knowledge in a systematic tabular manner to prepare it for analysis. Okay, तो क्या करता है कि जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर एक गोल के बारे में जिसपे हमको पर्टिकुलर अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके डिसीजन लेना है, तो वो सभी चीजें वो क्या करता है, एक टेबुलर फॉर्म में वहां पे अरेंज करता है। अब यहाँ पे देखो, अब वो डिसीजन टेबल में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। द डिसीजन टेबल हैविंग द डिसीजन वेरिएबल विच डिस्क्राइब्स द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ वेरिएबल। डिसीजन टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होगा वो होगा डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या है? डिसीजन वेरिएबल इज वेरिएबल्स इज नथिंग बट द अल्टरनेटिव्स दैट वी आर एबल टू सेलेक्ट। ओके, तो डिसीजन टेबल में जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वॉट एवर द नॉलेज वी हैव अबाउट टू सेलेक्ट अवर गोल, दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहला जो एलिमेंट रहेगा डिसीजन टेबल का वो रहेगा डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल इज नथिंग बट द अल्टरनेटिव्स दैट वी आर अरेंजिंग इन द टेबल। ओके, मतलब डिसीजन वेरिएबल क्या है? जो अल्टरनेटिव, जो चॉइस हमको है, डिफरेंट चॉइसेस है, तो वो चॉइसेस वहां पे रहेंगे। जैसे मैंने कि लास्ट एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास दो डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल है, सैमसंग एंड एमआई। तो सैमसंग और एमआई ये क्या हो गए? मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। सो आई एम एबल टू सेलेक्ट आइदर सैमसंग और एमआई, और अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज आई हैव द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स नाउ, द वीवो, ओप्पो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ mobiles I am considering as a decision variable. Clear? Now, the second element that we are considering in the decision table is the uncontrolled variables. Okay, uncontrolled variables in which we are including the uncontrolled variables and parameters in which we are including factors that affect the result variable, but not under कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर। ओके, यहाँ पे हम ऐसे फैक्टर्स को स्पेसिफाई करेंगे विच अफेक्ट्स द रिजल्ट वेरिएबल बट नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर। अब यहाँ पे मैं जो अनकंट्रोल, जैसे मैंने आपको एक मोबाइल का एग्जांपल दिया, डिसीजन वेरिएबल में मैं टाइप्स ऑफ मोबाइल वहां पे इंक्लूड करूंगी, और अनकंट्रोल वेरिएबल में जहां पे मैं उसका है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस, उसका स्टोरेज कैपेसिटी, फिर उसका क्वालिटी ऑफ कैमरा, ये जो है ये अनकंट्रोल वेरिएबल दैट आई एम स्पेसिफाइंग। सो यू आर सेलेक्टिंग द वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द अनकंट्रोल वेरिएबल। जो अनकंट्रोल वेरिएबल है उसके ऊपर से आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एंड आफ्टर that you are selecting the variable, then the result variable outcome, क्या आप ये particular एक decision variable को select कर रहे हो जिसके on the basis of the uncontrolled variable, and if you are selecting this alternative, then what is its result? Okay, उसका result क्या होगा? Okay, so some mobile का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, किसी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छा है, किसका स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो आउटकम्स जो रहेंगे, रिजल्ट जो रहेगा उसका वो रिजल्ट वेरिएबल आपको बताएगा। दैट इज रिजल्ट वेरिएबल रिफ्लेक्ट इंटरमीडिएट आउटकम्स इन अ मैथमेटिकल मॉडल। ओके, तो आपका जो डिसीजन टेबल रहेगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ओके,
there are the different decision variables are there. That is nothing but the number of alternatives that we have, that we are able to select. Okay, number of choices that we have, that is nothing but the decision variable. Okay, उसके बाद है uncontrolled variable, that is the factors that affect the result variables. Okay, but not under control of decision maker. Okay, तो यहाँ पे जो uncontrolled variable होता है वो होता है फैक्टर्स या पैरामीटर्स जिसको कंसिडर करके आप अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं. ओके, और जो रिजल्ट वेरिएबल होता है, जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल को आपने कंसिडर किया और आपने एक पैरामीटर सेलेक्ट किया, उसका आउटकम क्या होगा. क्लियर टू एवरीवन? इसका हम डिटेल एग्जांपल अभी देखने वाले हैं. Here I am explaining only the what element the decision table consists of. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Preeti. Nikhil is in the lecture. Nikhil is there? Yes, ma'am. Nikhil, unmute yourself. Yes, Nikhil. Rishikesh is there? No, ma'am. Okay. So this point is clear to everyone. I am continuously observing some students are not present for the lecture. They are only marking the attendance. Now, if I found this again and again, I will remove that student from the class. Okay, this is a strict warning to everyone. If you are not present in the class, don't mark the attendance. Okay. Some student only mark the attendance and leave the class. So if I am observing this, then I will remove that student from my class. Okay. So this point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So here now we are discussing the one example with the decision table. Okay, अब हम decision table को एक example के साथ देखेंगे. Now here we are considering the one example of investment example. Okay, now the person want to invest into the particular company, and that company there are the different alternatives are there in which company that person want to invest. So here the investment example. An investment company investing in one of the three alternatives. That investor have the three alternatives. That one alternative, that person is able to invest in the bonds, in the stock, or in the CDs. These are the three different companies they are given here, in which the person is able to invest their money. Okay. Now only their goal is maximize the yield after 1 year. That means that person's goal is that what? उसका goal क्या है? Whatever the amount I am investing in a particular organization or the company, that its yield means the profit. It maximize its profit after 1 year. 1 year में उसको अच्छा खासा maximum profit मिलना चाहिए. ये उसका goal है. Okay. So yield depends on. अब ये yield जो है उसका, ये जो goal है, जो purpose है कि उसका जो profit है. अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है? दैट इज द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी. जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वॉट एवर दैट यू आर इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर, दैट इज हाउ मच प्रॉफिट यू विल गेट आफ्टर हाउ मच टाइम. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी. ओके, जिसको हम स्टेटस ऑफ नेचर भी बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ नेचर, 3 स्टेटस होते हैं इकोनॉमी के. एक होता है सॉलिड ग्रोथ, एक होता है स्टैग्नेशन, एंड थर्ड वन इज द इन्फ्लेशन. ओके, सॉलिड ग्रोथ मतलब जहां पे आपको तेजी से ग्रोथ होगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप लगाओगे, मार्केट जिसमें ग्रोथ रेट बहुत तेजी से हो रहा है. एक होगा कि अगर मार्केट की जो स्थिति है, दैट इज इफ इट इज अ स्टेबिलिटी है मार्केट में. जैसा आपने देखा कि नाउ इन द कोविड सिचुएशन देयर इज अ स्टैग्नेशन इन द मार्केट. हमने देखा था कि मार्केट एकदम स्टेबल हो गया था.
ओके यस वो एक था कि वाली तो खाली करना नहीं वैसे नहीं. So there is a first option, that is the first state of nature is solid growth. मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, मार्केट अच्छे स्थिति में है. दूसरा क्या है? स्टैग्नेशन, जिसमें कि गतिहीनता है. मार्केट में जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबिलिटी है, उसमें सॉलिड ग्रोथ नहीं है. और एक इन्फ्लेशन क्या है? दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन रेट, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, दैट इज देयर इज अ टू मच इंक्रीज इन द रेट ऑफ द एवरी प्रोडक्ट इन द मार्केट. महंगाई जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसके वजह से भी क्या होता है? मार्केट के ऊपर असर होता है. तो हम यहाँ पे जब इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट में ये तीनों सिचुएशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा. ओके, दैट इज आई हैव द थ्री अल्टरनेटिव्स व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग माय मनी, and if after investing, if these three state of economy is occur, then what is the percentage profit in this situation, and then based on that I am selecting the best alternative to achieve my goal. What is my goal here? That is I want to maximize the profit after 1 year. Whatever the amount I am investing, that I want the maximum yield after 1 year. So here the yield depends upon the states of economy. Which states are there? That is we are considering the three states of economy. अगर एक solid growth है, when stagnation is there and inflation is there. Okay. तो ये तीनों सिचुएशन को कंसीडर करके इन्वेस्टर वहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करेगा. क्लियर? अभी देखो हम इसको देखेंगे. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम यस, क्लियर मैम. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. Stagnation means क्या? स्टैग्नेशन मतलब स्टेबिलिटी, मार्केट में स्टेबल मार्केट है, ना ग्रोथ है, मतलब ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. जैसा गतिहीनता आ जाती है ना, स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में. जैसे कि अभी हमने देखा कि इन द कोविड सिचुएशन देयर इज नो ट्रांजैक्शन, ड्यू टू दैट देयर इज अ स्टैग्नेशन इन द मार्केट. गतिहीन हो गया था मार्केट एकदम. देखा ना आपने? मार्केट में पैसा नहीं था, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था. उसके वजह से क्या आ गई थी? गतिहीनता आ गई थी मार्केट में. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन. क्लियर? Clear, ma'am. ओके. अभी देखो, बिफोर शोइंग दिस आई विल शो द टेबल. यहाँ पे हम देखेंगे, ये टेबल में आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे एक डिसीजन टेबल क्रिएट किया है. जो इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है हमारा, that is the investor's goal is to maximize the profit in 1 year. Okay. तो अब यहाँ पे देखो कि डिसीजन टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिसीजन टेबल में क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. ओके. तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डिसीजन वेरिएबल, जो हमारे ये अल्टरनेटिव्स है. अल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं आपको. 3 alternatives we have, that is bonds, stocks and CDs. These are the 3 alternatives for the investor that investor is able to select. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे that is uncontrolled variable बताया है, state of economy और the state of nature. state of economy को हम state of nature भी बोलते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है. 3 अनकंट्रोल्ड वेरिएबल बताया है, सॉलिड ग्रोथ, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन. ओके. जिसमें हमने यहाँ पे परसेंटेज बताया है कि इस सिचुएशन में सॉलिड ग्रोथ में बॉन्ड्स कंपनी का परसेंटेज ग्रोथ कितना होगा, स्टैग्नेशन में कितना होगा और इन्फ्लेशन में कितना होगा. ओके. क्लियर? तो यहाँ पे देखो बॉन्ड्स को 12.0% है सॉलिड ग्रोथ में अंडर दिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी. अंडर स्टैग्नेशन
6.0 एंड अंडर इन्फ्लेशन 3.0%। ओके, बॉन्ड्स के लिए। उसके बाद स्टॉक के लिए आप देखोगे तो सॉलिड ग्रोथ में 15% है, उसके बाद यहाँ पे स्टैग्नेशन में 3% है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन में -2% ग्रोथ होगा। वैसा ही सीडीज का भी दिया है। तो यहाँ पे देखो पे ऑफ डिसीजन वेरिएबल अल्टरनेटिव्स, उसके बाद अनकंट्रोल वेरिएबल स्टेट ऑफ इकोनॉमी और रिजल्ट वेरिएबल। ये जो वैल्यूज है ये हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, ये जो थ्री नेम्स हमने यहाँ पे बताए हैं दैट इज अनकंट्रोल वेरिएबल, और उसके जो वैल्यूज हमने बताए दैट इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएबल। अगर आपको बॉन्ड्स कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो एंड इफ द कंडीशन ऑफ द मार्केट इज इन द सॉलिड ग्रोथ, सो व्हाट इज द आउटकम? 12% ग्रोथ। दिख रहा है आपको ये जो वैल्यूज है ना, दैट इज क्या है? रिजल्ट वेरिएबल, दैट इज प्रोजेक्टेड यील्ड। कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा? 12%। स्टैग्नेशन सिचुएशन रहेगी मार्केट की तो कितना परसेंट मिलेगा? 6%। इन्फ्लेशन रहेगा तो 3%। ओके, समझ में आया? तो जो अल्टरनेटिव्स है वो है डिसीजन वेरिएबल, सॉलिड ग्रोथ, स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन। ये क्या है? दैट इज अनकंट्रोल वेरिएबल, and the value under this is the outcome under that condition. Okay, outcome आपको जो मिलेगा that is the result variables, projected yield. Clear? टेबल समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these are the values are given under the table. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने वही बताया क्या? If solid growth in the economy, then bonds yield 12%, stock yields 15%, and CDs yield 6.5%. If stagnation is there, then bond yield 6%, stock yield 3%, and CDs yield 6.5%. In inflation, bond yield 3%, stocks loss 2%, and CDs yield 6.5%. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा कि ये डिसीजन टेबल है। अब डिसीजन टेबल में हमने 3 एनवायरनमेंट देखे, एक सर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी एंड एक रिस्क। ओके, अब देखो यहाँ पे कि सर्टेनिटी, नाउ दिस इज द एग्जांपल आई एम मेंशनिंग हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल नॉलेज है, यू आर हैविंग द टोटल नॉलेज कि मैं कौन से कंपनी में मार्केट की किस सिचुएशन में मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, इफ द इकोनॉमिकल स्टेट ऑफ द स्टेट इज द सॉलिड ग्रोथ, देन आई गॉट द 12% रेज और द 12% प्रॉफिट फॉर माय इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है सर्टेनिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, आपको हर एक चीज का कि बॉन्ड्स में मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना आउटकम मिलता है, यू नो द आउटकम हियर, आपको रिजल्ट पता है यहाँ पे। तो ये है सर्टेनिटी का एग्जांपल। बट इन अगर आप हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी, ओके, तो डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी। अब जब हम अनसर्टेनिटी में यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहे हैं जहां पे अनसर्टेनिटी का मतलब है हमको पता है कि वी डोंट हैव द डिटेल नॉलेज अबाउट द, और वी डोंट नो द आउटकम ऑफ द अल्टरनेटिव्स। मुझे पता नहीं है कि मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे कितना आउटपुट मिलेगा, या फिर मैं स्टॉक में करूंगी तो कितना मिलेगा, या सीडीज में करूंगी तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहला क्राइटेरिया है मैक्सीमैक्स, फाइंड under the optimistic approach there are the 2 different approaches there, optimistic and pessimistic. okay, तो optimistic में हम क्या करते हैं? find the alternative that maximizes the maximum outcome for the every alternatives. तो हम यहाँ maximizes मतलब देखो हम बेस्ट में से बेस्ट, जैसा हमने बोला ना कि बेस्ट में से बेस्ट सॉल्यूशन, तो मैक्सिमाइज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मतलब सर्टेनिटी को कंसीडर करता है। ठीक है, मैक्सिमम
मतलब जहां से आपको बेस्ट में से बेस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो एग्जाम्पल क्या बोला है, स्टॉक। अब स्टॉक क्यों बोला है, देखो यहाँ पे स्टॉक का अगर आप सॉलिड ग्रोथ देखोगे तो 15% है, दिख रहा है आप सभी को। सॉलिड ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका है, एम ऑडिबल? यस मैम। Yes. तो सबसे ज्यादा Stocks. परसेंटेज स्टॉक का है। तो आपने यहाँ पे देखा कि फाइंड द अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मैक्सिमम आउटकम फॉर एवरी अल्टरनेटिव। ठीक है, फॉर एवरी अल्टरनेटिव, समझ में आया आपको? तो मैक्सिमम दैट इज अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मैक्सिमम आउटकम फॉर एवरी अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सॉलिड ग्रोथ हमने अगर कंसिडर किया तो सॉलिड ग्रोथ में से मैक्सिमाइज किसका है, स्टॉक का है। ठीक है, और वही हमने अगर दूसरे कंडीशन में देखा, मैक्सिमाइज किसका है, स्टैग्नेशन में हमने अगर देखा तो मैक्सिमाइज किसका है, सीडीज का है ना? Yes, हाँ ma'am. मैम। और उसी के बाद इन्फ्लेशन में अगर हमने देखा तो मैक्सिमम किसका है, 6.5 सीडीज का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है तो वो बेस्ट में से बेस्ट सेलेक्ट करने को बोलता है। तो वी हैव द बेस्ट अल्टरनेटिव्स एंड फ्रॉम दैट बेस्ट ऑफ बेस्ट वी आर सेलेक्टिंग। ओके, अब मैक्स मीन जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्सिमिस्टिक है, जो अनसर्टेनिटी में ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला अनसर्टेनिटी में हमारे पास वर्स्ट से वर्स्ट केस होता है। ओके, वर्स्ट में का बेस्ट, वर्स्ट में का जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा केस रहेगा, वर्स्ट में का बेस्ट बोल सकते हो आप? वर्स्ट में का बेस्ट हम किसको बोलेंगे? अगर मेरे पास जितने भी वर्स्ट कंडीशन है उसको मैंने अगर असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे अरेंज किया, ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वाला जो वर्स्ट कंडीशन आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला, और लास्ट में क्या आएगा, सबसे ज्यादा जो वर्स्ट कंडीशन है वो सबसे लास्ट में आएगा। और डिसेंडिंग में किया तो इसके अपोजिट आएगा, सबसे जो वर्स्ट कंडीशन है वो टॉप पे आएंगी। तो वर्स्ट से वर्स्ट मतलब यहाँ पे फाइंड द अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम आउटकम फॉर एवरी अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे देखो मिनिमम मतलब यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन का सबसे बेस्ट अगर मुझे लेना है तो सबसे जो वर्स्ट कंडीशन रहेगी उसको मैं वर्स्ट में का बेस्ट बोलूंगी। समझ में आया आपके पास? अगर मेरे पास कंडीशन को मैं एक वैल्यू देती हूँ, वर्स्ट कंडीशन का पहला वैल्यू है 0.2, फिर 0.4 और 0.6। ओके, तो जो 0.6 है जो सबसे वर्स्ट कंडीशन है, ओके, वो वर्स्ट में का सबसे बेस्ट है। समझ में आया आपको? नो मैम। Yes, ma'am. ओके, No, ma'am. क्षितिजा, जो वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट में के मतलब हम क्या करेंगे कि नुकसान तो हो रहा है, इसमें इतना नुकसान, इसमें इतना, एक में 20%, एक में 40% और एक में 60% मुझे लॉस हुआ है। तो वर्स्ट कंडीशन क्या है, ये सब वर्स्ट कंडीशन के केस है। तो सब में से वर्स्ट कौन सी बेस्ट कंडीशन है? 20% ना मैम। नो, 20 तो Because 20, उसमें से जो सबसे ज्यादा लॉस मुझे जो हुआ है दैट इज द बेस्ट, क्योंकि ये स्टैक किसका है, वर्स्ट कंडीशन का स्टैक है। वर्स्ट में का बेस्ट कौन सा रहेगा, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, जो 60% वाला लॉस है ना मेरा, तो वो मेरा बेस्ट है इसमें। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं प्रॉफिट का कंसिडर करती हूँ, प्रॉफिट को हम बोलते हैं कि एक इसमें मुझे 50% प्रॉफिट हुआ है, एक में मुझे 60% हुआ है और एक में मुझे 80% हुआ है, तो इसमें का बेस्ट कौन सा रहेगा, 80%। 80% वाला। तो वैसे ही वर्स्ट में एक में 20% लॉस है, एक में 40% और एक में 60% है, तो वर्स्ट में का बेस्ट कौन सा रहेगा, 60%। 60% वाला। सबसे बैड सिचुएशन इसमें की सबसे बेस्ट रहेगी, मतलब उसका फर्स्ट रैंक रहेगा कि सबसे टॉप पे, वर्स्ट कंडीशन में सबसे टॉप पे कौन सा है, 60% लॉस। समझ में आया? जो मिनिमम है, जिसमें सबसे मिनिमम प्रॉफिट मुझे हुआ है,
60% लॉस हुआ है, मतलब मुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना है उसमें, सिर्फ 40%। समझ में आया क्षितिजा? हाँ मैम। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमिन मतलब जो मैक्सिमम कंडीशन है जिसमें मिनिमम प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कंडीशन, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में क्या बताया है, देखो सीडीज। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो सॉलिड ग्रोथ रेट है उसमें हमको कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, मिनिमम 6.5%, जो सबसे कम है। ठीक है। मैक्सिमाइज में हमने देखा था जिसमें हम बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं, तो वहां पे हमने क्या कंसिडर किया, किसका एग्जांपल दिया था, स्टॉक का, दैट इज 15%। क्लियर? यस मैम। और फिर वर्स्ट में जो हमने देखा था मैक्स मीन, जो सबसे मिनिमम है वो क्या है, 6.5, दैट इज ऑफ सीडीज। ओके, तो यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल दिया है, सीडीज। अब देखो ये जो थर्ड इक्वली लाइकली कंडीशन है, ये किसका एग्जांपल हो सकता है, बता सकते हो आप? इक्वली लाइकली हाईएस्ट आउटकम। हाईएस्ट आउटकम, इट इज द फाइंड द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट आउटकम। ओके, तो हम यहाँ से सबसे हाईएस्ट आउटकम है वो हम लेते हैं, बट बाय टेकिंग द रिस्क। ओके, रिस्क इक्वली लाइकली हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, सो योर कॉन्सेप्ट विल मोर क्लियर। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम सबसे बेस्ट, मिनिमम सबसे वर्स्ट। ओके, और लाइकली क्वालिटी, फाइंड द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एवरेज आउटकम। एवरेज आउटकम बोल रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ तीनों वैल्यूज है, ये जो इसमें जो तीनों वैल्यू है ना, 12, 6 और 3, हम उसको अगर ऐड करते हैं 12, 6 और 3 को, और उसको डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे, तो जो वैल्यू आएंगे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वाला ऑप्शन रहेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ पे 12 + 6 + 3 होगा। ओके, और उसको डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद, और फिर उसके बाद 15 + 3 + -12 होगा। ओके, जो वैल्यू आएगी, एवरेज हम कैसे निकालते हैं पता है ना, यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यू है, इसलिए हम इसका जो एडिशन करेंगे उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस 3? ये 3 वैल्यू आने के बाद जो मैक्सिमम रहेगा, दैट इज वी आर सेलेक्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वली लाइकली। फाइंड द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एवरेज आउटकम। क्या वर्ड यूज किया है, एवरेज आउटकम, हाईएस्ट एवरेज। ये तीनों में से जिसका हाईएस्ट एवरेज आएगा, दैट वी आर सेलेक्टिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वली लाइकली। ओके, मिनिमैक्स रिग्रेट जो होता है, रिग्रेट अगेन द प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम मिनिमाइजेज एंड क्या करते हैं, हम मिनिमाइजेज द मैक्सिमाइज रिग्रेट। ये कैसा फाइंड करते हैं हम, देखो रिग्रेट कैसा फाइंड करते हैं, रिग्रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द पे ऑफ इज नथिंग बट द प्रॉफिट, पे ऑफ फ्रॉम द बेस्ट डिसीजन। जो बेस्ट हमारी वैल्यू है वो बाकी रेस्ट वैल्यू में से हम सब्सट्रैक्ट करते, उसमें से सब, दैट इज बिटवीन द पे ऑफ फ्रॉम द बेस्ट डिसीजन एंड ऑल अदर डिसीजन। मतलब हमारी जो बेस्ट वैल्यू है उसमें से अदर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके हम ये वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमैक्स रिग्रेट। अब मैं आपको उसका एग्जांपल बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या है, मैक्सिमैक्स। तो मैक्सिमैक्स का हमने देख लिया कि सबसे जो बेस्ट वैल्यू है 15 है, जिसको हमने यहाँ पे बताया है मैक्स। दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ मैम। सबसे बेस्ट वाला जो लिया था हमने, इसका एग्जांपल भी आपको बताया था कि स्टॉक इसका एग्जांपल है, और उसका सबसे जो सॉलिड ग्रोथ है जो 15% है, तो ये मैक्सिमैक्स मतलब मैक्स वैल्यू यहाँ पे सर्कल करके बताई है, सो इट विल जनरेट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मैक्स। ये समझ में आ गया, मैक्सिमैक्स? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या है, मिनी मैक्सिमिन। सेकंड क्या है, मैक्सिमिन है। अभी मैक्सिमिन में देखो, यहाँ पे सीडीज में आपने देखा कि सबसे कम ग्रोथ है सॉलिड ग्रोथ में, तो यहाँ पे मैक्स मीन, यहाँ पे एक्चुअली मीन बताना चाहिए था, गलत। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे,
6.5 वैल्यू हमने यहाँ कर वर्स्ट केस हमने बोला था ना, तो वर्स्ट केस में हमने सबसे कम ग्रोथ वाले केस को यहाँ पे कंसीडर किया, दैट इज 6.5। क्लियर? ये समझ में आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. अब देखो हाईएस्ट एवरेज वैल्यू, हमने हाईएस्ट एवरेज वैल्यू का एग्जांपल लिया था ना। अब देखो यहाँ पे 12 + 6 कितना हो गया? 18 18 + 3 21 21 डिवाइडेड बाय 3 7 7। ओके, डिवाइडेड बाय 3 क्यों लिया? बिकॉज वी हैव द 3 स्टेट। ओके, 3 स्टेट वैल्यू ये इज 3 है ना, दैट इज 12 6 एंड निकालना है। 3। ओके, वी आर एडिंग दिस 3। हमने बोला था कि हम हाईएस्ट इक्वली लाइकली में हम क्या लेते हैं, दैट इज वी आर कंसीडरिंग द हाईएस्ट एवरेज वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहले रो का एवरेज निकाला हमने, इट्स वैल्यू इज 7। नाउ वी विल फाइंड द average of second value. 15 + 3 is the 18, 18 - 2 is the 16, and 16 divided by 3 is 5.3. Okay, समझ में आ रहा है ये वैल्यू कैसे आ रही है सभी को? हाँ मैम। Clear to everyone? Yes ma'am. Now after that we are finding the value of the next row using the same process, 6.5 + 6.5 + 6.5 and divided by 3. So obviously its average is 6.5. So we are considering here the highest average value, that is nothing but the 7. Okay, 7 दिख रहा है ना यहाँ पे? मेरा एरो दिख रहा है कि आपको यहाँ पे पॉइंटर? Yes ma'am. So this is the 7 value. So we are considering here the highest average value is the 7, which is nothing but the equally likely. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। अभी समझ में आया इक्वली लाइकली? Yes ma'am. ओके, तो Yes, ma'am. और उसके बाद देखो मिनी मैक्स रिग्रेड, जो मैंने आपको बोला था कि मिनी मैक्स रिग्रेड हम कैसा फाइंड करते हैं। व्हाट इज द टाइम? ओके, मिनी मैक्स रिग्रेड। अब यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द रिग्रेड टेबल। हम यहाँ पे रिग्रेड टेबल फाइंड करेंगे, जिसका पहला स्टेप है फाइंड द बेस्ट पे ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ नेचर। तो तीनों इसमें से हमने बेस्ट निकाला, स्टेट ऑफ नेचर में से बेस्ट निकाला। सॉलिड ग्रोथ में से 15 है, स्टैग्नेशन में से 6.5 है, इन्फ्लेशन में से भी 6.5 है। सो वी आर फाइंडिंग द बेस्ट पे ऑफ फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ नेचर। तीनों इसमें से ये जो रेड पॉइंट किया है ना मैंने यहाँ पे, तो ये क्या है? हमारा बेस्ट है। तीनों जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है, फ्रॉम दैट आई एम सेलेक्टिंग द बेस्ट पे ऑफ। क्लियर? ये समझ में आया? Yes ma'am. अब देखो मैंने बोला था आपको कि दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे, दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेट फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन ईच पे ऑफ एंड द बेस्ट पे ऑफ। ईच पे ऑफ एंड बेस्ट पे ऑफ का हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। ओके, फॉर द स्टेट ऑफ नेचर। अब देखो यहाँ पे इसमें से हमने सबसे बेस्ट क्या सेलेक्ट किया था? 15। ठीक है, 15 - 12 किया हमने। पहला वैल्यू क्या था यहाँ पे? देखो 12 था। 15 - 12 क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। 3 यहाँ पे। ये 3 कैसा आया? समझ में आया? हाँ मैम। That is we are taking the difference between the best payoff and the other state of nature. तो यहाँ पे हमने 15 - 12 किया, so it will generate the 3. 15 - 15 is the 0. Then यहाँ पे क्या था? 6.5. That is 15 - 6.5 is the 8.5. Okay? यहाँ पे से हमने बेस्ट क्या लिया था? 6.5 लिया था। सेकंड रो में हमने, सेकंड कॉलम में हमने 6.5 लिया है। ओके, तो यहाँ पे 6.5 में से हमने क्या माइनस किया? 6 माइनस किया। ठीक है, तो क्या आ गया? 0.5 आ गया। ठीक है, है ना 0.5। सेकेंड वैल्यू क्या है? 3 है। 6.5 माइनस 3 क्या आ गया? 3.5 आ गया। और 6.5 माइनस 6.5 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसमें से भी हमने क्या लिया था? 6.5 ही लिया था, है ना? अब देखो 6.5 माइनस 3 क्या आएगा? 3.5। ओके,
उसके बाद 8.5 आया है और 6.5 में से 6.5 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ गया है 0 लिया। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम रिग्रेट फॉर ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द मिनिमम ऑफ दिस। हमने यहाँ पे पूरा रिग्रेट निकाल लिया तीनों इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रिग्रेट निकालने के बाद यहाँ पे से हम जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट किया। ये तीनों में से मिनिमम कौन सा है, सॉरी मैक्सिमम कौन सा है, ये तीनों में से 5.3.5 पहले क्या है मैक्सिमम रिग्रेट, फाइंड द मैक्सिमम रिग्रेट फ्रॉम ईच रो, हर रो में से मैक्सिमम, हर रो में से मैक्सिमम कौन सा है, ये रो में से 3.5 है, पहले रो में 3.5 है। क्लियर, यस क्लियर टू 5 आना एवरीवन। चाहिए ना, हाँ वहाँ पे 5 आना चाहिए ना। 5 नहीं है बेटा, 0.5 है वो, इट इज 0.5 नॉट 5 खतीजा, यस मैम। 0.5 है वो। ओके ओके 3.5 और 0.5 3.5 में से मैक्सिमम कौन सा है, 3.5 3.5 है। सेकंड रो में से मैक्सिमम कौन सा है 8.5 8.5 और थर्ड रो में से भी मैक्सिमम कौन सा है 8.5। अब ये मैक्सिमम लेने के बाद मैक्सिमम रिग्रेट में से हमको क्या सेलेक्ट करना है, मिनिमम। ओके, ये जो रिग्रेट है तो मिनिमम रिग्रेट यहाँ पे हमको दिखा है 3.5, दैट इज मीन मैक्स रिग्रेट। हम उसको क्या बोलते हैं, मीन मैक्स रिग्रेट। क्लियर, दिस एग्जांपल इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. तो हम डिसीजन मेकिंग अंडर, ये अभी हमने कौन सा काय का एग्जांपल देखा, अनसर्टेनिटी का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टुडे विल स्टॉप हियर। Okay, so every point is clear to everyone, any difficulty? यस Okay, so now at 1 o'clock, instead of your ASP.NET, Java lecture is there. So all of you please join the Java lecture. Okay, कौन सा क्लास ज्वाइन करना है आपको, Java. Java class. Okay, so please if you have any difficulty you can ask me. If you don't have any difficulty then leave the class and join the Java class. Okay, मैम मेरी अटेंडेंस मिस हो गई आज की, अटेंडेंस हो गई रूपाली? हाँ लेट हो गया वो। हाँ, तो फिर अभी मैं कल से 12 से 12 o'clock से 12:15 तक ही टाइम देने वाली हूँ। ठीक है मैम। रोज अटेंडेंस उसी टाइम पीरियड में होगा अभी। ओके मैम। ओके, हेलो मैम। यस दीपाली।